Hello students, I'm Dr. Komal Rathod, Assistant Professor Kamal Bhatia in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. So today's session we will discuss about dengue fever. So first of all, we know what is dengue fever. Dengue fever, also known as backbone fever, ब्रेक fever. जैसा कि नाम से ही पता है, ये हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है. An infection tropical disease caused by dengue virus. डेंगू वायरस, डेंगू फीवर वायरस जिसे डेनेवी कहते हैं, is an RNA virus of the family Flaviviridae, genus Flavivirus. Most are transmitted by arthropods, mosquito or ticks, and are therefore also refers to as a arbovirus, यानी कि arthropods borne viruses भी ये है. Types. There are 4 types of virus which are called serotypes, and these are refers to as a DNAV1, DNAV2, DNAV3 and DNAV4. Means dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, dengue virus 4. All our 4 serotypes can cause the full spectrum of disease. Infection with one serotype is believed to produce lifelong immunity to that serotypes, but only short-term protection against the others. Now we come to transmission. We know how dengue fever's transmissions occur. Dengue is transmitted by several species of mosquito within the genus Aedes principally. Aedes aegypti. It's the most common vector or species. An infection can be acquired via a single bite. A female mosquito that takes a blood meal from a person infected with dengue fever becomes itself infected with the virus in the cell lining its gut. About 8 to 10 days later, the virus spreads to other tissue, including the mosquito salivary gland, and subsequently release into its saliva. यहाँ ट्रांसमिशन को समझते हैं कि डेंगू का ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग स्पीशीज के द्वारा होता है मच्छर की, लेकिन जो एडीज इजिप्टी जो स्पेसिफिक जीनस है एडीज, उसकी एडीज इजिप्टी फैमिली के द्वारा, मॉस्किटो की एक फैमिली, इसके द्वारा ये डेंगू फीवर होता है. इसका इन्फेक्शन एक सिंगल बाइट से ही हो जाता है जब फीमेल मादा मच्छर मनुष्य के डेंगू फीवर से संक्रमित मनुष्य के खून को भक्षण करती है या मनुष्य को काटती है, तो इन्फेक्टेड जो वायरस है वो उसकी शरीर में आ जाता है, उसकी गट में प्रवेश कर जाता है और 8 से 10 दिन के बाद यह अलग अलग टिश्यूज में जाकर रोग की उत्पत्ति करता है. यहाँ पे मॉस्किटो मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उसके अंदर ये वायरस रहता है, और जैसे ही मच्छर मनुष्य के शरीर को काटता है तो ये उसके शरीर में इस वायरस को पहुंचा देती है. Mechanism. When a mosquito carrying dengue virus bites a person, the virus enters the skin together with the mosquito saliva. It binds to and enter white blood cells and reproduce inside the cells while they move throughout the body. In severe infection, the virus produced inside the body is greatly increased, and many more organs such as liver and the bone marrow can be affected. And fluid from the blood streams leak through the wall of small blood vessels into body cavity. Means जब मॉस्किटो डेंगू वायरस को अपने शरीर में लिए हुए जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसकी स्किन को जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है तो ये वायरस मनुष्य के शरीर में चला जाता है, और सबसे पहले ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो WBC होती है मनुष्य के शरीर में, उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है और धीरे धीरे फिर ये पूरे शरीर में फैल जाता है.
जब ये सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ लीवर में, बोन मैरो में, इन सबको भी अफेक्टेड करता है। और जो शरीर के फ्लूइड होते हैं, शरीर का फ्लूइड जो होता है, ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम जो होता है उस उन कैपिलरीज में ये लीकेज उत्पन्न कर देता है, जिससे कि जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड स्ट्रीम मतलब कि कैपिलरीज में ना बह के आउटर कैविटी में आ जाता है। As a result, less blood circulate in the blood vessels and blood pressures become so low that it cannot supply sufficient blood to vital organs. तो जब सर्कुलेशन में ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड आउटर स्पेस में चला जाएगा, तो कैपिलरीज में ब्लड कम हो जाएगा, तो इससे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है, उनको सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। Furthermore, dysfunction of the bone marrow leads to reduced number of platelets, which are necessary for effective blood clotting. These increase the risk of bleeding and the other major complications of dengue fever. जब इस प्रकार का डिसफंक्शन होता जाता है, अदर ऑर्गन्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो बोन मेरो में भी डिसफंक्शन होगा और जो प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मेरो से हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इससे जो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो नहीं हो पाएगा और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाएगी। सिम्टम्स मेनली असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स इसमें 80% इसमें दिखते हैं। 80% जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसके फीवर में, लेकिन मोर सीवियर इलनेस 5% ही होती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। मोर सीवियर इलनेस 5% है, इन a small proportion it is a life threatening. The incubation periods, time between exposure and onset of the symptom, that's called incubation. So what is incubation? If anyone is asking to you, so you can say time between exposure and onset of symptoms, that called incubation periods. जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन का है, बट मोस्ट ऑफन 4 से 7 दिन के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सडन ऑनसेट फीवर, हेडेक, typically what kind of headache? Typically located behind the eyes, आंख के पीछे दर्द होता है। हेडेक ऐसा होगा, आंख के पीछे आईबॉल में दर्द होता है। मसल्स एंड जॉइंट्स पेन and a rashes. The alternate name of dengue, break bone fever, comes from the associated muscles and joint pains. Symptoms including fever, headache, muscles and joint pain, and characteristic skin rashes that is similar to measles. In a small proportion of cases, the disease develop into the life-threatening dengue, like hemorrhagic fever. लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हेमोरेजिक फीवर हो जाता है, लाइक उसमें बॉडी में लीकेज चालू हो जाएगा, जगह जगह ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इसलिए इसको लाइफ थ्रेटनिंग हेमोरेजिक फीवर कहा गया है। रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम बट डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर अकर। दो तरह के नाम आए हैं यहाँ, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक में पेशेंट जब जाएगा जब उसका बीपी लो हो जाएगा, मीन्स जब वाइटल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए बता रखा है, लेकिन डायग्नोसिस से पहले ये जो इन्फेक्शन है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फेब्राइल फेज होती है, देन क्रिटिकल फेज होती है और थर्ड होती है इसकी रिकवरी फेज। तो सबसे पहले फेब्राइल फेज समझते हैं। फेब्राइल फेज जो होती है उसको फेब्राइल इसलिए बोला है क्योंकि एफ से फेब्राइल और एफ से फीवर, हाई फीवर इसमें बनता है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। बाइफेजिक इन नेचर, ब्रेकिंग एंड देन रिटर्निंग फॉर 1 to 2 days, मतलब ये कंटिन्यू बना रहता है और 1 या 2 दिन में दोबारा आता रहता है। जनरलाइज्ड पेन, पूरी होल बॉडी पेन रहती है, हेडेक रहता है, लास्ट 2 और 7 डेज तक रैशेस हो जाते हैं। फर्स्ट डे रैशेस होते हैं, सेकंड डे अपने आप ही जो सिम्टम है वो फ्लश हो जाते हैं स्किन से। लेटर इलनेस 4 से 7 दिन रहते हैं, मीजल्स के समान इसमें रैशेस रहते हैं। सम पैचेस क्या है, एक तरह से स्मॉल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं जो स्किन पे दिखते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर लगाते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे। ये किस लिए होते हैं, जो
स्किन के ऊपर जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं उनमें लीकेज की वजह से दिखते हैं. Can appear at this point as may some mild bleeding from the mucous membrane on the mouth or nose. तो mouth और nose से अपन को bleeding दिखाई देगी, इसमें small patches बन जाते हैं. तो ये थी febrile phase. Then इसके बाद second number पे आती है critical phase. A critical phase which follow the resolution of high fever and typically last 1 to 2 days. During this phase, there may be significant fluid accumulation in the chest and abdomen due to increased capillary permeability and leakage. यहाँ पे क्रिटिकल फेज में फीवर तो कंटिन्यू बना ही रहेगा 1 से 2 दिन तक, लेकिन इस फेज में क्रिटिकल बोला गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा चेस्ट और एब्डोमेन कैविटी में, क्योंकि कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ रही है और लीकेज बढ़ रहा है, तो वो जो फ्लूइड होगा वो चेस्ट में और एब्डोमेन कैविटी में जमा होने लगेगा. दिस लीड टू डिप्लीशन ऑफ फ्लूइड from the circulation and decrease blood supply to the vital organs. Then third phase is recovery phase. Reabsorption of the leakage fluid into the blood stream. इसमें होता है कि reabsorption होने लग जाता है, मीन्स रिकवरी है, नाम से पता चल रहा है, तो जो लीकेज हो रहा था अब वो रीअब्सॉर्ब होने लगेगा फिर से. तो रीअब्सॉर्ब होने से क्या होगा, फ्लूइड वापस से ब्लड स्ट्रीम में जाना लगेगा. दिस यूजुअली लास्ट 2 to 3 days. ये 2 से 3 दिन तक रहता है. सीवियर इचिंग होती है, लो हार्ट रेट रहेगी. ड्यूरिंग दिस फेज अ फ्लूइड overload state that may occur, it is affected the brain. It may cause a reduced level of consciousness and seizures. अब इस फेज में क्या होता है, फ्लूइड का ओवरलोड होने लगेगा, वापस से वो जाने लगती है, तो ब्रेन अफेक्टेड होता है, ब्रेन को वापस से उसका फ्लूइड मिलने लगेगा, तो उस टाइम कॉन्शियसनेस रिड्यूस रहेगी, सीजर्स भी इसमें आ सकते हैं. रिकवरी फेज में फ्लूइड लीकेज तो कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी में सीवियर ईचिंग रहेगी, लो हार्ट रेट रहेगी, और फ्लूइड का ओवरलोड होने की वजह से ब्रेन अफेक्टेड होता है और कॉन्शियसनेस उसमें कम रहती है और सीजर्स भी आते हैं. यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO ने 2009 में दिया था. इसके अंदर डेंगू को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, अनकम्प्लीट और सीवियर. अनकॉम्प्लिकेटेड और सीवियर. अनकॉम्प्लिकेटेड और सीवियर बोला तो इसमें आगे बता रखा है कि जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसको आगे 1 से 4 स्टेजेस में बांटा गया है. यहाँ पे ग्रेड 1 स्टेज, ग्रेड 2 स्टेज, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 स्टेजेस बताइए. तो फर्स्ट स्टेज है वो होती है जब इसमें प्रेजेंस होता है सिंपल सी ब्लड स्विंग रहती है, मतलब कि सिंपल सा, अगर हम टॉर्निकेट टेस्ट मतलब उसमें टॉर्निकेट बांधेंगे हाथ पे तो सिंपल सी ब्लड स्विंग रहेगी, मीन्स थोड़े से ब्लड के इसमें धब्बे दिखेंगे, क्लॉटिंग सी होगी. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली स्किन से और कहीं से भी ब्लीडिंग आने लगेगी. तो ग्रेड सेकेंड इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू द स्किन and elsewhere. Grade third is a clinical evidence of shock, and grade fourth is a shock so severe that the blood pressure and pulse cannot be detected. Grade third and fourth are refers to as a dengue shock syndrome. जो थर्ड स्टेज और जो फोर्थ स्टेज है जिसमें शॉक कंटिन्यू बना हुआ है, और फोर्थ स्टेज जिसमें कि ब्लड प्रेशर और पल्स डिटेक्ट ही नहीं हो रही है, उस स्टेज को बोला है डेंगू शॉक सिंड्रोम. यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करते हैं. तो डायग्नोसिस ऑफ द डेंगू इज टिपिकली मेड क्लिनिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, सिम्टम्स एंड फिजिकली एग्जामिनेशंस. द अर्लीस्ट चेंज डिटेक्शन ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. इसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उनसे पता चलता है. लो वाइट यानी कि लो WBC काउंट रहेगा, WBC काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाता है. In severe diseases, plasma leakage result in a heme concentrations. Severe जब ये डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो प्लाज्मा लीकेज बढ़ जाता है. हीम कंसेंट्रेशन है वो क्या होगा, हीम कंसेंट्रेशन मीन्स जो हेमेटोक्रीट्स है वो राइज हो जाते हैं. ठीक है. हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है, एल्ब्यूमिन की ब्लड में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है. प्लूरल इफ्यूजन एसाइटिस मिलता है जब हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, तो हमें उसमें एसाइटिस मिलता है, प्लूरल इफ्यूजन मिलता है, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें इन सब का पता चलेगा. ये डेंगू शॉक सिंड्रोम का स्टार्टिंग है. आगे बता रखा है द
probable diagnosis is based on finding of fever. इसमें बता रखा फीवर के साथ में अगर दो सिंड्रोम्स और मिलते हैं, लाइक अ प्रोबेबल डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ फीवर प्लस 2 ऑफ द फॉलोइंग. इसके साथ में नोजिया या वॉमिटिंग, रैशेस, पेन, लो WBC काउंट मिले, पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट मिले, तो हम उसे डेंगू को पॉजिटिव मानेंगे. वार्निंग साइंस टिपिकली अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सीवियर डेंगू. अगर किसी को सीवियर डेंगू नहीं हुआ है तो वो वार्निंग स्टेज नहीं. और टर्निकेट टेस्ट जो है वो बताया गया है कि जब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, और तो फिर क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर वाला कफ 5 मिनट के लिए हाथ पे बांधेंगे और काउंटिंग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, हेमरेज की पैचेस बन जाएंगी बहुत सारी, अनकाउंटेबल हो जाते हैं, तो उससे डेंगू की होना सामान्यतः पुष्टि हो जाती है कि डेंगू से है. तो टर्निकेट टेस्ट क्या है? द टर्निकेट टेस्ट विच इज पर्टिकुलरली यूज इन सेटिंग वेयर नो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आर रेडीली अवेलेबल, involve the application of blood pressure cuff for 5 minutes followed by counting of any partial hemorrhages. A higher number make a diagnosis of dengue more likely. मैनेजमेंट. अब यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही सिंपली बताया है. यहाँ पे मैं कोई डिजीज के मतलब कोई डिजीज की कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक मैनेजमेंट बताया है, ट्रीटमेंट नहीं बता रही. तो मैनेजमेंट यही है कि जब डेंगू पॉजिटिव हो जाता है, सीवियर कंडीशन में नहीं है, नॉर्मली बताया गया है, तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चालू करनी चाहिए, इंट्रावीनस फ्लूइड देने चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए. द प्राइमरी मेथड of controlling Aedes aegypti is eliminating by its habits. इसकी हैबिट्स से रोक सकते हैं कि मच्छर अगर फैल रहे हैं तो हम मच्छरों को फैलने से रोके, उनकी कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे हम ना इकट्ठा होने दें, और इवन मच्छरदानी में सोएं, ये सब हम प्रिकॉशन रखें. दिस इज डन बाय एम्प्टिंग कंटेनर ऑफ वाटर, बाय एडिंग इंसेक्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ दीज एरियाज, reducing open collection of water through environmental modification. People can prevent mosquito bite by wearing clothes that fully cover the skin, using mosquito netting while resting, and or the application of insect repellent. So that's all about dengue fever. Thank you.